Hello students, I am Puneet Kumar Goyal and in the today's lecture we will start the new topic, that is tree, and in the tree we will study the basic terminology in the binary tree, strictly binary tree, complete binary tree, almost complete means types of binary tree, height and count of the nodes. We will drive a relation among the height and the number of nodes in a binary tree. Now, if we talk about the tree data structure, first of all, it is a non-linear hierarchical data structure. अभी तक हमने जो लिंक लिस्ट तक समझा था वो क्या था हमारा linear data structure, arrays linear data structure, but tree, graph, these are the non-linear data structure, and the tree also has another property, it follows the hierarchical relationship. ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो हायरार्किकल रिलेशनशिप फॉलो करता है. So, organizing data in a hierarchical manner means there is some parent child relationship, there is the concept of parent child relationship, that is why it is called a hierarchical manner. Now, it is a non-linear means from the given node we can traverse in the left direction, we can traverse in the right direction. So, it is a non-linear data structure which does not have any closed region. ट्री में कोई भी closed region नहीं होता, it is a connected. From given node we can reach to any node. So, ये हमारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर है. बेसिकली ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हमें जो स्टडी करना है वो है बाइनरी ट्री. बट बिफोर गोइंग टू द बाइनरी ट्री, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स इन द tree data structure. So, root node, starting node और first element of the tree is called the root node. अगर मैं tree की बात करता हूँ, starting node है हमारे यहाँ पर A, that is the starting node, और first node of the element is called the tree. Tree में कितने root node हो सकते हैं? In a tree there can be only one root node. ठीक है. Now, edge, it is a link which connects two node. Suppose ये हमें एक ट्री दिया हुआ है, so it is a root node, starting node or first node of the tree. Now, this is an edge which connect two nodes, that is called the edge. अगर आपके पास n नोड्स हैं, इन दैट केस देयर शुड बी n माइनस 1 एजेस. यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं मेरे पास? 3. एंड एजेस 2. ठीक है. नंबर ऑफ नोड 5, A, B, C, D, E, एंड नंबर ऑफ एजेस 4. ओके. तो n नंबर ऑफ नोड्स हैं अगर मेरे पास, इन दैट केस देयर शुड बी n माइनस 1 एजेस. नाउ पेरेंट नोड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इट फॉलोज अ हायरार्किकल, इट इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. सो देयर इज द कंसेप्ट ऑफ पेरेंट नोड. ए नोड इज अ कॉल्ड पेरेंट नोड अगर if node has any number of branches while moving from top to bottom. यानी अगर मैं A की बात करता हूँ, A is a parent node, yes A is a parent node, because जब हम move करते हैं from node A to node B, तो branches node A to node D आपको number of nodes मिल रहे हैं. यानी जब हम move करते हैं parent node से और उसके any number of branches हैं top to bottom, then it is called the parent node. एक है A is the parent node of B and C, because A से B तक एंड A से C तक एक एज आ गई आपकी. जब हम मूव करेंगे A से B की तरफ तो हमें ब्रांच मिलेगी. नाउ B इज ऑल्सो पेरेंट नोड, बट D, E, C are not the parent node because
A node is called parent node if node has any number of branches while moving from top to bottom. तो D से आगे हम मूव ही नहीं कर सकते बिकॉज दिस द नोड विच हैज नो चिल्ड्रन. तो ये पेरेंट नोड नहीं है, ये आपके लीफ नोड है. नाउ दिस इज अ रूट नोड. These are the edges. This is also parent node, root node भी है और parent node भी है. C is also a parent node, but not the root node. Tree में केवल एक ही root node होता है. These all are not the parent node. H, E, F, K. Now another term is child node. A node which has an edge from its parent node is called child node. देखिए, B is called the child node of A because there is an edge from its parent node to B. C is also called the child node of node A because there is an edge from node A to C. Sibling, किसी भी गिवन पेरेंट नोड के जो चिल्ड्रंस होते हैं विच आर एट द सेम लेवल आर कॉल्ड द सिबलिंग्स. हियर बी एंड सी आर कॉल्ड सिबलिंग. बिकॉज बी एंड सी आर एट द सेम लेवल और इनका पेरेंट नोड क्या है आपका नोड ए. नाउ सिबलिंग के बाद लीफ नोड. The node which has no child is called leaf node. A node which does not has any child is called the leaf node. Now internal node. All the nodes except the root node and the leaf node are called the internal node. Root node और leaf node को अगर हम लेफ्ट कर देते हैं यानी नोड ए को कंसीडर नहीं करते और H, E, F, K नोड्स को अगर हम कंसीडर नहीं करते, these all are the अदर देन दिस नोड ऑल नोड्स आर द इंटरनल नोड्स. ये बाकी सभी नोड जो है के इंटरनल नोड है. रूट नोड ए आपका रूट नोड हो गया. H, E, F, K दिस ऑल आर द लीफ नोड एंड अदर नोड B, D, C these are the G, these are the internal nodes. Now degree, number of children, number of child node of a given node is called the degree of given node. It is defined as the number of children or child nodes of a parent node. तो बाइनरी ट्री की अगर मैं बात करूँ तो उसमें डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2 बिकॉज एटमोस्ट कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी भी नोड के 2. लोएस्ट डिग्री क्या हो सकती है 0 यानी कोई भी चाइल्ड नहीं है. क्लियर है. तो जितने भी लीफ नोड होते हैं उनकी डिग्री क्या होगी 0. और डिग्री ऑफ अ ट्री की अगर मैं बात करता हूं, डिग्री ऑफ अ ट्री इज द मैक्सिमम डिग्री अमंग ऑल द नोड्स. मैक्सिमम डिग्री जो होगी अमंग ऑल द नोड्स. यानी अगर आपने बाइनरी ट्री बनाया ए बी सी डी ई, ए की डिग्री 2, बी की डिग्री 0 होगी बिकॉज लीफ नोड है. सी की डिग्री 2 होगी, डी और ई की डिग्री 0 होगी. और अगर मैं ई का एक चिल्ड्रन और क्रिएट कर देता हूँ एफ चाइल्ड, ई की डिग्री 1 हो जाएगी. लेकिन मैक्सिमम डिग्री क्या अमंग ऑल द नोड्स, मैक्सिमम डिग्री है मेरी 2. तो इस ट्री की डिग्री क्या हो गई, इस ट्री की डिग्री हो जाएगी आपकी 2. तो बाइनरी ट्री में एटमोस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है और लोएस्ट डिग्री जो होती है वो 0. 0 डिग्री जो होती है वो किसकी होगी लीफ नोड की, because leaf node does not have any child. Now level of a tree, it can be defined as each step in the tree. Means this is a each step, it is a level 0. रूट नोड जो होता है वो आपका स्टेप 0 पर यानी लेवल 0 पर होता है. और जैसे जैसे आप मूव करते हो लेवल इंक्रीज होते जाते हैं. आप टॉप टू बॉटम जैसे मूव कर रहे हो आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा. So it is defined as each step in a tree. Level start from 0 and it is incremented by 1 while moving from root to leaf.
तो जैसे जैसे हम रूट से लीफ की तरफ मूव करते हैं, लेवल ऑफ अ ट्री आपका हर स्टेप में, हर सीक्वेंस में बाई 1 इंक्रीज होता जाता है। क्लियर है यहां तक? नाउ हाइट, हाइट एंड डेप्थ टू आर द मेजर properties of a tree. Height of any node is the longest path. First term is the longest path from leaf node to that node. हाइट जो होगी किसी भी नोड की वो क्या होगी? वो होगी लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम लीफ नोड टू दैट नोड। लीफ नोड से आप उस नोड की तरफ मूव करेंगे और जो भी लॉन्गेस्ट पाथ आएगा वो उस नोड की हाइट होगी। तो अगर मैं ट्री की हाइट की बात करता हूँ, अभी जो हमने डेफिनेशन बताया वो क्या था? किसी भी नोड की हाइट, यानी लीफ नोड से उस नोड तक जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, यानी लॉन्गेस्ट पाथ मतलब नंबर ऑफ एजेस उस लॉन्गेस्ट पाथ की, वो उसकी हाइट होगी। क्लियर है? तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? हाइट ऑफ द ट्री होगी लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम लीफ नोड टू रूट नोड। भाई सबसे लीफ नोड का सबसे फारदेस्ट नोड कौन सा होगा? रूट नोड ही तो होगा, बिकॉज रूट नोड से आके टॉप टू बॉटम आप रूट नोड से लीफ नोड की तरफ मूव करते हैं। तो अगर मैं किसी भी नोड की हाइट की बात करता हूं तो वो क्या होगी? लीफ नोड से उस नोड तक का जो पाथ है, नंबर ऑफ एजेस। लेकिन अगर मैं ट्री की हाइट की बात करता हूं वो क्या होगी? लीफ नोड से रूट नोड तक का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो उस ट्री की हाइट कहलाएगा। और लीफ नोड की हाइट कितनी होती है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नंबर ऑफ एजेस और पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम लीफ नोड टू दैट नोड। तो लीफ नोड से लीफ नोड तक की पाथ जो होगी वो क्या होगी? लेंथ 0। तो लीफ नोड की हाइट 0 होती है। रूट नोड की हाइट जो भी होती है वो ट्री की हाइट होती है। अदर देन रूट नोड जो होते हैं उन सभी नोड्स की हाइट के लिए हमें क्या करना है? लीफ नोड से उस नोड तक का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा दैट इज द हाइट ऑफ दैट नोड। नाउ कम टू द डेप्थ पार्ट। डेप्थ ऑफ एनी नोड is defined as the longest path from root node to that node, from root node to that node। अभी जब हमने हाइट की बात की थी, किसी भी नोड की हाइट क्या है? लीफ नोड से उस नोड तक का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा। लेकिन जब मैं डेप्थ की बात करता हूं तो रूट नोड से उस नोड तक का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा। डेप्थ ऑफ एनी नोड इज डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू दैट नोड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। यानी डेप्थ में हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव कर रहे हैं, लीफ नोड से उस नोड तक। और डेप्थ के लिए रूट नोड से उस गिवन नोड तक, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। तो डेप्थ ऑफ एनी नोड इज डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू दैट नोड। तो डेप्थ ऑफ द ट्री क्या होगी? डेप्थ ऑफ द ट्री इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू द फारदेस्ट लीफ नोड, फ्रॉम रूट नोड टू फारदेस्ट लीफ नोड। यहाँ पे डिफरेंस समझना है दोनों में, डेप्थ और हाइट में। हाइट में हम डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव कर रहे हैं, लीफ नोड से उस नोड तक जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा। डेप्थ में हम रूट नोड से उस नोड तक का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो डेप्थ होगा। ठीक है? तो डेप्थ ऑफ अ ट्री इज डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड, फारदेस्ट लीफ नोड जो होगा। क्लियर है? तो डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। ये मुझे रूट नोड दिया हुआ है। अगर मैं इस रूट नोड की डेप्थ की बात करता हूं और हाइट की बात करता हूं, हाइट की डेफिनेशन, हाइट ऑफ एनी नोड इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम लीफ नोड टू दैट नोड। तो रूट नोड की हाइट क्या होगी? फारदेस्ट लीफ नोड h, h से रूट नोड तक की हाइट, लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा हुआ? 1 2 3, यानी उस पाथ में नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 3। तो हाइट कितनी हुई रूट नोड की? रूट नोड की हाइट होगी आपकी 3, और जो रूट नोड की हाइट होगी वही ट्री की हाइट होगी। तो ये ट्री की हाइट है 3। नाउ अगर मैं डेप्थ की बात करता हूं, डेप्थ की डेफिनेशन क्या कहती है? डेप्थ ऑफ एनी नोड इज डिफाइंड एज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू दैट नोड, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू दैट नोड। तो रूट नोड से रूट नोड तक का डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा? 0। तो रूट नोड की पाथ होगी 0। अब नोड बी पर आते हैं। नोड बी की हाइट, फारदेस्ट लीफ h है 1 2, तो हाइट ऑफ नोड बी 2। डेप्थ नोड बी की कितनी होगी? रूट नोड से उस नोड तक का लॉन्गेस्ट पाथ। तो रूट नोड से उस नोड तक का लॉन्गेस्ट पाथ, नंबर ऑफ एजेस 1, तो डेप्थ हो गई आपकी 1। इन द सेम वे बी का अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, हाइट 1 हो गई, डेप्थ कितनी हो जाएगी? 2, बिकॉज रूट नोड से डी तक का लॉन्गेस्ट पाथ कंटेन द नंबर ऑफ एजेस 2। क्लियर है?
नाउ लीफ नोड पर आ जाते हैं। लीफ नोड का क्या होगा, लीफ नोड की हाइट जो है वो 0 होगी। क्यों? बिकॉज लीफ नोड से लीफ नोड तक का जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो क्या है, 0 नंबर ऑफ एजेस। तो लीफ नोड की हाइट क्या होगी, 0, और डेप्थ क्या होगी, रूट नोड से लीफ नोड तक का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा। तो हमें क्या समझ आया, रूट नोड की जो हाइट है वही आपकी ट्री की हाइट होगी। ठीक है, वही आपकी ट्री की हाइट होगी। रूट नोड की डेप्थ हमेशा क्या होती है, 0। रूट नोड की डेप्थ हमेशा 0 होती है। तीसरा पॉइंट, लीफ नोड की हाइट जो होती है वो क्या होती है लीफ नोड की हाइट होती है आपकी 0। क्लियर है? नाउ पाथ, ए पाथ कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ एजेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। जैसा अभी हमने समझा था यहाँ, अगर मैं ए से एफ तक का पाथ फाइंड करता हूं, ए टू सी, सी टू एफ, तो क्या हुआ पाथ, सीक्वेंस ऑफ एजेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। ए से सी तक का जो सीक्वेंस ऑफ एजेस होगा दैट इज कॉल्ड द पाथ। ओके, नाउ नोड्स की टर्म में अगर हम समझना चाहते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ नोड्स फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। सोर्स नोड से सीक्वेंस ऑफ नोड ए सी एफ, ये पाथ हो गया आपका। तो सीक्वेंस ऑफ एजेस और सीक्वेंस ऑफ नोड्स फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। नाउ सब ट्री, node with any number of children is called a subtree. Now come to the binary tree. Binary tree, as the name suggests, each node can have either 0 child, 1 child or at most 2 children. किसी भी नोड का या तो 0 चाइल्ड हो सकता है या 1 चाइल्ड हो सकता है या मैक्सिमम एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 अगर 2 चिल्ड्रन है तो, 0 अगर लीफ नोड है तो, 1 अगर एक चाइल्ड है तो। लेकिन 2 से ज्यादा डिग्री किसी भी नोड की नहीं हो सकती बिकॉज बाइनरी, एज द नेम सजेस्ट। नाउ नोड ए की डिग्री कितनी है, 2, बी की 1, डी की 0, और डिग्री 0 इज कॉल्ड द लीफ नोड, और सी की 0 डिग्री। इन द सेम वे रूट नोड और लीफ नोड सेम है बिकॉज एक ही नोड है आपके ट्री में, तो ये भी आपका बाइनरी ट्री कहलाएगा। नाउ types of the binary tree, this is one of the another most important concept जो डिफरेंसेस सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। types of the binary tree are the full binary tree or strictly binary tree, perfect binary tree, complete binary tree and almost complete binary tree। इन सभी की प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस क्या होती है और डिफरेंसेस क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। फुल बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, फुल और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री सेम नेम, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो बाइनरी ट्री जिसमें या तो 0 चाइल्ड होगा किसी भी नोड का, यानी कोई चाइल्ड नहीं होगा, या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे। मिडिल वाला केस नहीं आएगा, 1 चाइल्ड वाला, या तो चाइल्ड प्रेजेंट नहीं होंगे और अगर प्रेजेंट हैं चिल्ड्रन तो 2 चिल्ड्रन प्रेजेंट होंगे किसी भी नोड के। दैट इज कॉल्ड full or strictly binary tree। As the diagram suggests here, node has A has degree 2 because 2 children B and C, B has degree 2, C has degree 0, D and E also has degree 0। तो या तो डिग्री 0 होगी या डिग्री 2 होगी, डिग्री 1 वाला केस इसमें कंसीडर नहीं होगा। क्लियर है? नाउ तो हमें क्या समझ आया, फुल और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री तो बाइनरी ट्री होगा, लेकिन सिंपल डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्री हमेशा फुल या स्ट्रिक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज अगर मैं बात करूं, ये आपका बाइनरी ट्री तो है, दिस इज द बाइनरी ट्री, बट ये आपका फुल या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है। बिकॉज बाइनरी ट्री क्यों है, क्योंकि या तो 0 या 1 या 2 चिल्ड्रन है, लेकिन फुल या स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज नोड सी हैज ओनली 1 चाइल्ड, तो नोड सी की डिग्री क्या हो गई, 1। नाउ सेकेंड टाइप इज द परफेक्ट बाइनरी ट्री, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द फुल और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या कहता है, ईच नोड हैज आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन, यानी वही डेफिनेशन जो फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की थी, हमने इसमें और एक्सटेंशन कर दिया, ऑल द लीफ नोड शुड बी एट द सेम लेवल, यानी जितने भी लीफ नोड हैं वो आपके सेम लेवल पर प्रेजेंट होना जरूरी है। तो नोड ए की बात करता हूं, डिग्री 2, बी सी की डिग्री 2 है, डी ई एफ जी ऑल आर द लीफ नोड,
all are the leaf node and all are present at the same level. ये आपका लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, तो लास्ट जितने भी लीफ नोड है वो सभी सेम लेवल पर है। इस डायग्राम की बात करता हूँ, दिस ऑल लीफ नोड आर एट द सेम लेवल, क्लियर है। बट अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं, दिस वन, क्या ये आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री है? दिस डायग्राम इज परफेक्ट बाइनरी ट्री, फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री तो है आपका, क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है? डेफिनेशन परफेक्ट बाइनरी ट्री की क्या कहती है? ईच नोड हैज आइदर 0 or 2 चिल्ड्रन, फर्स्ट पॉइंट, एंड द सेकंड पॉइंट ऑल लीफ नोड आर एट द सेम लेवल। तो चेक कर लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो रही है, या तो 0 है या 2 चिल्ड्रन है, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी ऑल द लीफ नोड, सी इज लीफ नोड, सी अलग लेवल पर है और डी और ई अलग लेवल पर है। इसका मतलब क्या हुआ? परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। ये वाला डायग्राम जिसको हमने एनसर्कल किया हुआ है दैट इज फुल और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री तो है वो, बट ये डायग्राम जो है वो आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, बिकॉज ऑल द लीफ नोड जो है वो सेम लेवल पर नहीं है। क्लियर है? तो क्या समझ आया हमें? जितने भी परफेक्ट बाइनरी ट्री हैं, जितने भी परफेक्ट बाइनरी ट्री हैं वो सभी फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री तो होंगे, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी जितने भी परफेक्ट बाइनरी ट्री हैं वो फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री तो होंगे, लेकिन जितने भी फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हैं वो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट बाइनरी ट्री हो, जैसा कि ये डायग्राम जिसको हमने एनसर्कल किया हुआ है। नाउ कम टू द थर्ड वन, कंप्लीट बाइनरी ट्री, all levels are completely filled except possible the last level, except possibly the last level। जितने लेवल्स हैं, यानी अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ, रूट नोड लेवल 0 पे रूट नोड हो गया आपका, लेवल 1 पे कितने नोड आएंगे? मैक्सिमम 2 नोड, यस 2 हैं। लेवल 2 पे मैक्सिमम कितने नोड आएंगे? 4 नोड, 2 की पावर 2। तो क्या समझ आया? जितने भी लेवल्स हैं दैट शुड बी कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबल द लास्ट लेवल। पॉसिबली द लास्ट लेवल, हो सकता है लास्ट लेवल कंप्लीटली फिल्ड ना हो, या हो भी सकता है कि लास्ट लेवल कंप्लीटली फिल्ड हो। तो पहला पॉइंट, ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल। लास्ट लेवल अगर कंप्लीटली फिल्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लास्ट लेवल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, उससे पहले जितने भी लेवल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। ऑल्सो इफ लास्ट लेवल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, देन इट माइट और माइट नॉट बी फिल्ड कंप्लीटली, देन ऑल द नोड्स शुड बी फिल्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अगर वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है लास्ट लेवल, तो जितने भी नोड जो फिल होना स्टार्ट होंगे वो लेफ्ट से होने चाहिए। यानी अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ फर्स्ट वन की, तो यहाँ पे तो जितने भी नोड्स हैं, जितने भी लेवल्स हैं सॉरी, वो सभी कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन अगर मैं सेकंड डायग्राम की बात करता हूं, तो लास्ट लेवल पे, लास्ट लेवल 2 पर कितने नोड होने चाहिए? 4, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं। तो वो क्या कह रहा है? अगर लास्ट लेवल फुल नहीं है पॉसिबली, तो जितने भी नोड फिल होना स्टार्ट होंगे वो लेफ्ट से स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस डायग्राम को इस तरह से बना दूं, ए बी सी इस तरह से, डी ई, ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। क्यों? बिकॉज सारे लेवल फिल हैं एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट, लेकिन जो लास्ट लेवल है जिस पे 4 नोड होने चाहिए थे उस पे 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 नोड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है? अगर लास्ट लेवल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो जो नोड फिल होना स्टार्ट होंगे वो लेफ्ट टू राइट फिल होना स्टार्ट होंगे, यानी इस तरह से। यहां पे क्या है? यहां पे राइट वाला पहले फिल है। क्लियर है? तो ये तो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। देन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है? सभी लेवल पे फुल नोड होने चाहिए। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि लास्ट लेवल पे फुल नोड ना हो। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आई तो उस केस में क्या करना है? लास्ट लेवल पे जितने नोड फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट फिल हो, तो ये तो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया। ओके, नाउ
ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है, ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट। वो ये मानकर ही चलता है शुरू से कि लास्ट लेवल फिल्ड नहीं होगा। कंप्लीटली फिल्ड बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या मानकर चलता है कि लास्ट लेवल फुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या मानकर चलता है कि लास्ट लेवल फुल होगा ही नहीं। तो क्या आ रहा है, ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, ऑल्सो लास्ट लेवल मस्ट नॉट बी फिल्ड कंप्लीटली, जो हमने अभी बताया। अगर फुल नहीं है तो ऑल द नोड्स शुड बी फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट, यानी ये प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन एक प्रॉपर्टी चेंज हुई कंप्लीट बाइनरी ट्री के कंपैरिजन में, जितने लास्ट लेवल कभी भी फुल नहीं होगा। क्लियर है, कंप्लीट बाइनरी ट्री में पॉसिबली फुल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हुआ। नाउ अब हाइट एंड नंबर ऑफ नोड्स के बीच रिलेशन, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे, लेवल 0 पे कितने नोड्स होंगे, 2 की पावर 0, एक रूट नोड। लेवल 1 पे एटमोस्ट कितने नोड हो सकते हैं, 2, यानी 2 की पावर 1। अगर कंप्लीटली फिल्ड है उस केस को हम कंसीडर कर रहे हैं। लेवल 2 पे टोटल 4, 2 की पावर 2। लेवल 3 पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये लेवल 3 हो गया आपका। एंड सो ऑन अप टू h। तो 2 की पावर h लिया हमने। अब दैट फॉर्म्स अ जीपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल टर्म देन डिफरेंस, जो निकल कर आता है टोटल नंबर ऑफ टर्म r की पावर n माइनस 1 a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यहाँ पे r क्या है, r है आपका 2, a क्या है, a है आपका 2 की पावर 0 यानी 1। तो क्या निकल कर आएगा, 2 की पावर 0 देन 2 की पावर r की n की वैल्यू क्या है, 0 से चले हम s तक, h प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो क्या निकल कर आया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स n इक्वल्स टू 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। टेकिंग लॉग बोथ साइड, बेस टू बोथ साइड, क्या आएगा, log n बेस टू, इसमें एक काम और कर सकते हैं, 1 को हम उधर ले जाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग n प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर h प्लस 1। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा, log n प्लस 1 बेस 2 इक्वल्स टू, log बेस 2 लेंगे तो h प्लस 1 बाहर आ जाएगा, log 2 बेस 2 हो जाएगा 1। तो h प्लस 1 इक्वल्स टू log n प्लस 1 बेस 2। तो क्या आएगा हमारा, हाइट h इक्वल्स टू log n प्लस 1 बेस 2 माइनस 1। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग। नाउ तो ये हाइट एंड नंबर ऑफ नोड्स की भी रिलेशन। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री व्हेन हाइट इज गिवन। कब होंगे, जब हर एक लेवल पे सभी नोड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री व्हेन हाइट इज गिवन, इस तरह से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स निकल कर आएंगे आपके, यानी ऑलमोस्ट सभी लेवल फुल हो। देन केस 2, मिनिमम नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री व्हेन हाइट इज गिवन। मिनिमम नंबर ऑफ नोड यानी एक ही तरफ आप पॉपुलेट कर दोगे, नंबर ऑफ नोड हर एक लेवल पे फुल ना हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड व्हेन हाइट इज गिवन। मिनिमम हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री व्हेन नंबर ऑफ नोड इज गिवन। तो हर एक लेवल को पॉपुलेट करते जाओ फुली,
तो हाइट अपने आप रिड्यूस हो जाएगी अगर नंबर ऑफ नोड गिवन है। क्लियर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस फॉर मैक्सिमम हाइट, हर एक लेवल को कम से कम नोड से फिल कीजिए इस तरह से। जब नंबर ऑफ नोड आपको गिवन है, तो यहाँ नंबर ऑफ नोड अगर आपको 4 गिवन है तो हाइट कितनी हुई, n-1 3। क्लियर है। तो ये हमारा हाइट एंड नंबर ऑफ नोड्स के बीच रिलेशन था, डिफरेंट केसेस को हमने कंसीडर किया। इस लेक्चर में हमने ट्री टर्मिनोलॉजी को समझा, बाइनरी ट्री को समझा, बाइनरी ट्री के टाइप्स को कंसीडर किया, देन हाइट एंड नंबर ऑफ नोड की भी रिलेशन एंड डिफरेंट केसेस हमने स्टडी किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रैवर्सल समझेंगे। थैंक यू।